Welcome everyone once again to Global Vision Academy's online learning platform. I'm Professor Dr. Sanket Gandhi and I welcome you all in today's live session. So I'm sure you must be very excited for today's class because after weekend we are going to meet, right? So how was your weekend? First question. And you all would answer it, okay, in English. Come on, without any delay. Balaji, Ashwini, please keep your camera on. तुमचा कॅमेरा ऑन ठेवा so that I can talk to you. Okay. Yes. Can you answer my question? How was your day so far? Or how was your weekend? Yes. Who is going to answer first? What happened? What are you waiting? It's live session, so you have to speak, okay? तुम्हाला बोलावंच लागेल तरच या क्लासचा उपयोग आहे. So please don't give me chance to speak. ओके आपको बोलने है और मुझे सुनना है. तो जहां पे आप गलत करोगे वहां पे मैं आपको करेक्शन करूंगा. इज इट ओके क्लियर? हाँ यही है ना सीन क्या मैं गलत करूंगा और आप करेक्ट करोगे ऐसा करना है. वो भी चलेगा आई डोंट माइंड. चलो प्लीज. यस हु इज गोइंग टू आंसर माय क्वेश्चन? आई डोंट थिंक आई हैव आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है ना ये जो आप नहीं। बात नहीं कर रहे हो. हाँ दैट्स नाइस तो प्लीज आंसर इट. यस बालाजी आई गेस यू हैव अनम्यूटेड तो आप बात कर सकते हो. ओके. Ah, yes. यस Sir, बालाजी. it was a wonderful weekend, but unfortunately, it's my first class, so I can't say anything about the uh, weekend class. No, I don't want you to talk about weekend class. My question was, how was your weekend? It It was means, wonderful, sir. how did you spend your time on weekend? Number of activities you might have done, right? Yeah, yeah, So I want you to elaborate it. वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है, वहाँ पे कुछ addition होता है, so I can help you out. yeah. Last weekend, I have joined one another class with the this one also. I have attended a firewall, which was cyber security class. I have attended that and joined. That's nice. And That's it. how did you join? Is that online? Yeah, it's online, sir. Online only. That's Uh, good. That's good. I have your friend, Amit Naik. You know Amit Naik from Pune? Yes, Amit Naik. He was in Nagar earlier Yeah, and he yeah, yeah, referred yeah, you. yeah. Okay, we were I, college students or college yeah, friends, yeah. you can say. He told me about your classes there. So Okay. I was eager to join your classes, sir. So nice of you. Thank you for trusting in my friend, basically. Yes, yes, And yes. surely I won't let you down because now it's about my friend's impression. So I would take care of it. And definitely he has given you reference, so it's my duty to give you more than what I could give. Okay. Yes, yes. Thank you. So thank you so much for joining. Thank you. That's nice. And where do you work basically? Are you Uh, working together? yeah, yeah. But he left the organization. Right now, I am working at YFX Studios. Okay, that's nice. And what's As your a, basic qualification? What have you done? I have done BCA, and currently as I am working as a system administrator. That's nice. And what is your willingness to improve your English? Means what do you see in future? Sir, I want confidence in my English so I can speak to foreigners or any clients which my company Allots visits. you. Yeah. Yeah, Okay. So it means like that's you have input, you just have to polish it as per the yeah, next requirement. yeah, yeah, sir. Because now I could see you have confidence also. As you labeled it, I don't agree, but I respect your opinion. For not for many days, but for few days, I would give you that scope. After few days, you would only say, "Sir, I'm quite confident because I have it."
Okay, Okay. I would make you realize, don't worry. Thank you. Thank you, So sir. surely, because I would tell you my story in brief. I met Amit in college, but before that, I Okay. was in Marathi medium school. Okay, and I Okay. was very, very poor in English. So Oh, Amit knows everything because we are friends from 11th class, yeah, and yeah. there I took admission in English medium, which was so-called English medium. Everything was in Marathi only Marathi. because it was in Nagar, and I was very dumb. Amit was quite good in studies, but I Okay. was not at all. Later on, I developed my interest and I came to Pune. So I polished myself and I came to know how important English would be in future. So since Yeah. 2012, I am into this domain and I'm trying my best. So far, 10,000 plus students, I got opportunity to interact, to train them, and they are very confident. So that's Okay. the reason I can tell you with that legacy of 14 years, I can tell you, you would get it what you want. Don't worry. Okay, sir. Thank you so much. Okay, so one suggestion, Balaji, to you, just Yeah. switch off the light, else sit in front of the light because Okay. आपके background से light है ना, so I cannot see on your face. Means आपको Okay. देखने में It's मुझे दिक्कत हो रही comfortable है. now, sir? Yeah, it's comfortable. And most of the time, whenever you're online, make sure lights should reflect on your face, not Oh, from your behind. noted, noted. Okay, that would be good. Chalo, because you will be interacting with clients also in future, or you Yeah. might be doing a night right now also. Okay, so online visibility is very important and make sure light should reflect on your face. That would be good in online. Okay, sir. Chalo, thank you so much. We'll continue this. Okay, guys, others, I couldn't hear you yet. Why so? You have to speak. Usha, Sarthak, okay, Rishabh, Ashwini also. Ashwini, you can also speak. Okay, I guess it's your first session, I guess, online. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you must be very excited and happy to speak, right? Yes, sir. ओके दैट्स फैंटास्टिक देखो एक बात ऐसा होता है कि सब कैसे बात करें गलत होगा तो क्या होगा कुछ नहीं होने वाला है यू हैव टू बिकॉज आपके पास है you just need to nurture it. And for that nurturing, for that development phase, I am with you. So I never shout at anyone, I never scold anyone because I know आप सब लोग चाहते हो कि आपको बोलना है बट वो पुशअप नहीं मिल रहा है आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसी के लिए तो मेरे साथ जुड़े हो अगर वो आप नहीं चाहते हो तो फिर आपसे मैं बात नहीं करूंगा पर आप चाहते हो ना ईगरली सर हमें भी बात करना है आपसे बेहतर करना है कि बिकॉज आई एम नॉट बेस्ट बट यू कैन बी द बेस्ट ओके तो आपसे बेहतर करना ऐसे भी आप सोचोगे ना तो भी आपको बेनिफिट होगा राइट मुझसे खराब तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं मुझसे बेहतर करने के लिए हम साथ में हैं, ठीक है सो प्लीज एक सजेशन आपको चाहिए सबके लिए कि ज्यादा टाइम मत लो अब जितना ज्यादा टाइम लोगे ना उस पर ड्वेलिंग करोगे ना कैसे बोलूं अनम्यूट करो कि नहीं करो इसमें ना वो टेम्पो चला जाता है तो फिर मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना पड़ेगा और वो आपका लॉस है मेरा नहीं है Okay, so I respect your time. I respect your eagerness to learn, but you should also respect the same. तो आपसे वो मुझे थोड़ा कम मिलता है enthusiasm is the first step for any skill or perfection. So carry it. Okay, so let's continue. And who else wants to share? कोई और बताना चाहेगा? How was the weekend? What did you do on weekend? फिर उसके बाद हम एक टॉपिक भी लेने वाले हैं. Yes, सार्थक, you raised hand. I'm sorry, I forgot. सार्थक. Can I speak, sir? Yes, please. My weekend was very nice. I enjoy a lot of in that weekend. I practice lot of हाँ अभी आप कह सकते हो आई एंजॉयड अ लॉट एज वेल एज आई प्रैक्टिस्ड yes. I practiced. I revised those topic you teach. यू टॉट Yes, you taught. What you say? You taught. You teach. टॉट Past tense. पास्ट टेंस Past है tense. इसलिए टीच का क्या हो Present. जाएगा टॉट हो जाएगा कंटिन्यू Past tense. Present tense. All those topic you taught. Thank you, sir. You are teaching. थैंक यू सर फॉर योर टीचिंग
ओके, प्रेपोजिशन भी यहाँ पे लगेगा ना, थैंक यू सर फॉर योर टीचिंग. रिपीट आफ्टर मी. Thank you, sir, for your teaching. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस. ओके, आप आएंगे नहीं तो मैं कैसे सिखाऊंगा. सो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. वेरी नाइस सार्थक, आई अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है, बट थोड़ा और उसमें जान डालो. अब ये सिर्फ सेंटेंसेस हो गए. आई वांट यू टू मेक इट एज कॉन्वर्सेशन, जैसे कि फील आना चाहिए उसमें. और चलो वापस एक बार ट्राई करते हैं. ओके, सो हाउ वाज योर वीकेंड सार्थक? व्हाट डिड यू डू ऑन वीकेंड? My weekend is very nice. Was very nice. I do lot of practice as well as enjoy lot of. हाँ, अभी यहाँ पे डू एक बार भी नहीं आएगा. अभी इससे पास्ट से जुड़ रहे हैं ना हम. तो जैसे पास्ट आएगा आएगा तो दिमाग में पास्ट टेंस के वर्ड्स आने चाहिए ना. तो आई वॉज ये सही था. आई देन आई डीड, सब कुछ पास्ट को रेफर करेगा यहाँ पे. चलो वन मोर टाइम. My weekend goes very nice. गोज या वॉज, क्या बोला आपने? Goes. हाँ, तो देखो हर टाइम आप नई गलती करो, कोई प्रॉब्लम है, आई वेलकम इट. ओके, ये अच्छी बात है आपकी, हर टाइम आप नया ट्राई कर रहे हो. तो गोज यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, अभी उसका लॉजिक बताता हूँ. सिंपल प्रेजेंट में हम उसे लेते हैं. हमेशा की एक्टिविटी है ना, कि हर वीकेंड मेरा अच्छा जाता है, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड. ओके, इनको बाकी लोगों को पता है. अगर आप मैरिड हो तो उसका कोई भरोसा नहीं वीकेंड कैसा जाएगा, बिकॉज क्या बोलेगा बीवी या आपके स्पाउस, तो उस पर डिपेंड होता है वीकेंड. ठीक है, तो आपके बारे में ऐसा है कि आप बहुत यंग हो, तो आपका वीकेंड आपके हाथ में है, कोई टेंशन नहीं आपको. आप क्या बोलोगे अगर हमेशा की बात है? तो आप बोलोगे माई वीकेंड गोज वेरी नाइसली, आई एंजॉय अ लॉट ऑन एवरी वीकेंड. ओके, ऐसे चलेगा. बट अभी आप कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का है कि क्या हुआ, क्या किया आपने वीकेंड पे. सो माय वीकेंड वाज फैंटास्टिक, आई एंजॉयड अ लॉट, आई डिड माय यू कैन से प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश टॉपिक्स whichever you taught, and I felt confident. That's it. ओके, तो ये आपको करना है, एक ही टॉपिक बता रहा हूँ, सिंपल पास्ट में यूज करना है, तो वो आसान है आपके लिए. चलो वन मोर टाइम. हाउ वाज योर वीकेंड सार्थक? My weekend goes fantastic. गोल्स आएगा ही नहीं. आपको प्रेजेंट में बताना है क्या कि मेरा हमेशा वीकेंड अच्छा जाता है, ऐसे बोलना है क्या आपको? फिर क्या आएगा सर? तो मैं इतनी देर क्या बता रहा हूँ, मैं गया ये बताना है ना आपको. तो माई वीकेंड वेंट आउट वेल, और माई वीकेंड वॉज नाइस. सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, माई वीकेंड वॉज नाइस, या फिर My weekend was nice. आई एंजॉयड अ लॉट ऑन वीकेंड, ऐसे भी चल सकता है. I enjoy lot of ड्यूरिंग वीकेंड. during weekend ठीक and है, I practice it. अभी देखो प्रैक्टिस्ड ये नहीं आ रहे प्रोनाउंसिएशन ना, प्रोनाउंसिएशन में Practice it. ईडी आना चाहिए ना, प्रैक्टिस्ड. अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या बोलोगे, आई डीड प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस को V2 नहीं लगाना है, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा है प्रोनाउंस करने को, तो आप डीड प्लस V1 करो. आई डीड प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं आप. चलो वन मोर टाइम. My weekend was very nice. I practiced it. I as well as I enjoyed also, and I revised those topic you taught me. Thank you, sir. वंडरफुल वंडरफुल, इट साउंड वेरी नाइस. ओके, समझ में आ रहा है प्रैक्टिस से क्या हो सकता है. मीन्स पहले आप एक दो बार आप फंबल कर रहे थे, गलत हो रहा था, बट अभी आप क्या करें, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आपने पूरा अच्छे से उसको निभाया. एंड दैट इज व्हाट प्रैक्टिस इज. Everybody, even every human being or every machine becomes perfect with the help of practice and right direction. Like example of AI. AI has been becoming very popular and very perfect. Why? Because we are giving inputs. It is taking it. It is researching, recycling, reusing, and then giving the output. So it has been becoming perfect. Am I right? तो लास्ट ईयर 2 साल पहले का एआई का आउटपुट और आज का बहुत फर्क है. इट्स हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्यों? बिकॉज इट इज प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली.
समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली आवर ब्रेन फंक्शंस द सेम. जिस चीज पे आप फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यू वुड बिकम परफेक्ट. इतना सिंपल लॉजिक है. और लैंग्वेज के लिए तो है ही है. बिकॉज लैंग्वेज में ऐसा कोई परफेक्शन नहीं होता है जब तक आप उसे रिवाइज ना करो. तो रिवाइज भी करेंगे बट डायरेक्शन भी चाहिए. क्या रिवाइज करना है, कैसे करना है, सिंक कैसे करना है, कौन से टेंस से कौन से टेंस में बात करना चाहिए, सिमिलर वर्ड्स कैसे यूज करेंगे, ये सब बताने के लिए और आसान करने के लिए मैं आपके साथ हूँ. ओके, बट करना किसे है? आपको. और कोई नहीं कर पाएगा. सो वेरी गुड. आई अप्रिशिएट सार्थक. आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे लगे अपने. और बेहतर करो. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट. ऋषभ इज इन अ रो. ऋषभ, somebody ask the question to ऋषभ. ऋषभ को यही क्वेश्चन पूछिए. चलो, यू कैन आस्क क्वेश्चन. एनीबडी. यस सार्थक, प्लीज. How was your weekend, Rushabh? Yes. Can I speak, sir? Yes, yes, why not? My weekend is little busy, but I enjoyed it. Sorry, my weekend was very little busy, but I enjoyed it. अभी वेरी My लिटिल नहीं होगा. वेरी लिटिल बिजी ऐसा नहीं होगा. माई वीकेंड वॉज busy, or you can say I was bit occupied with some different tasks or works. Okay, bit occupied ऐसे भी बोल सकते. थोड़ा ज्यादा busy था, या फिर I was with very busy. with occupied sir. Bit. Bit. Okay. या फिर I was very busy I ऐसे was बोल दो. I was very busy in weekend because of some relatives was come to my home हाँ, and relatives was कम नहीं आएगा, because some relatives had come. because of some relatives had come to my home and I gone to market. I went. Sorry, I went to market and purchased some things with my relatives. Then I am returned to. I was returned to home, and then I was returning. I came back home. I returned home. Simple past है ना. तो was और return दोनों साथ में नहीं आएगा ना. was आएगा तो फिर continuous में जा सकता है या simple past में. बट simple past में verb नहीं आएगा was के साथ. I came at home. Then some lunch, dinner, and breakfast. All days are gone away. नहीं, आप पढ़ो मत. और लिखा है ना आपने कुछ तो शायद. पढ़ो मत. आप डायरेक्टली नहीं बताओ. नहीं 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 सर मैं नहीं लिखा मैंने देखा लिखा अच्छा, लिखा ठीक है. फिर अगर आपने देखा लिखा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, इट्स ओके. आई नहीं मैं बिलीव ऑन यू. मुझे बताने की जरूरत नहीं. मेरा कहना क्या है, आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, तो स्क्रीन पे देख रहे हो. देखो, ऐसे देख रहे हो आप, तो ऐसा लग रहा है कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो. अगर आप कैमरे में देखोगे, हाँ अभी मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ आपको. नाउ आई एम लुकिंग एट यू. सो दैट्स व्हाई इट हम्म, शोज दैट आई एम नॉट वाचिंग एनीवेयर एल्स यू. मैं आपके पास ही देख रहा हूँ ना. पर जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो बाकी लोगों को या मुझे, तब ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हो कुछ. तो इट डजेंट साउंड बेटर. ये अच्छा भी नहीं दिखता है. हाँ, तो कॉन्फिडेंस कब दिखेगा, जब आपके आई लेवल पे कैमरा रहेगा. अभी आपका क्या हो रहा है, एंगल, कैमरे का एंगल नीचे है, तो आपको सामने रखना है आई लेवल पे. तब ये और कनेक्ट करेगा, बिकॉज कैमरा से ही आप कनेक्ट करोगे सामने वाले को. तो स्क्रीन पे मत देखिए आप. yes, कैमरा का जो होल होता है, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप हाँ, यूज कर रहे हो, वहां पे देखिए, उस होल से देखिए. yes. चलो, It's better now. लेट मी सी ऑन स्क्रीन फर्स्ट. मच बेटर. ओके. बट कैमरा Yes. एंगल फिर भी स्लांट है, आपका सामने चाहिए आई लेवल पे. अगर अभी पॉसिबल नहीं तो नेक्स्ट टाइम अरेंज करो. वैसे आप जहाँ पे बैठते हो ना, तो आपके आई लेवल पे कैमरा चाहिए, यानी स्क्रीन सामने चाहिए. तब वो अच्छे से कनेक्ट होगा आपको. चलो, Okay. कंटिन्यू. Uh, then next I was come. Then I went to Nagar, and I am very excited to uh, Global Vision Academy Club at Monday. हाँ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड.
I was very excited to this club, and I went to Global Vision Academy at 2:20. But Gandhi sir bit little busy in his work, and but Gandhi sir is very uh, genuine person because uh, he called me and लवकर येणे लवकर आले माझ्यासाठी लवकर आले काय म्हणायचं Okay. He was He called me and he said, I will come soon. okay. He called me and told me I will come soon. And sir, also sir was coming 15 minutes early. He said, And- Sir came 15 minutes early than scheduled time. sir came 15 minutes early that scheduled time, Then, and that then, then scheduled time. Okay. Sir came early, 15 minutes early than scheduled time. Then I am I was attend Global Vision Academy's club. हाँ, At I five- was attending. अभी यहाँ पे I attended. I attended. अभी देखो एक बात याद रखेंगे हमेशा, was were आएगा तो फिर आगे verb नहीं आएगा, अभी सिंपल पास्ट में कंटिन्यूस में आएगा. I was attending चलेगा, we were attending चलेगा, we were talking चलेगा, कंटिन्यूस में बराबर है. बट I was attend ऐसा नहीं होगा, फिर डायरेक्टली I attended, फिर I- was की जरूरत I- ही नहीं. I attended. I attended Global Vision Academy's club at 5:30 p.m. and I am very happy to attend this club. I learned very important or basic things at this club, and conversations to all students and I did conversation with other students. okay. I did conversation with other students. I also met dear Ashwini Phalke ma'am. She is here at now. Who is in the class right now? Who is in the class right now? And then next, it was raining, and So I left early. I remember you asked me, sir, can I leave early because I want to travel 60 kilometers yes, on Yes. bike. on bike actually. So I'm very happy to say all of you, Rishabh had come from 60 kilometers away to attend the club, and it really gives me immense pleasure to tell you that this kind of curiosity and enthusiasm should be there whenever you want to learn. Okay, I don't mean to say you should all come all the way long. It's up to you because I respect your schedule time, your responsibilities. But he came and I was very ecstatic. I was very happy to see him because it was not expected. Okay, because all the way from 60 kilometers he came and again he went back in such atmosphere, rainy, cloudy environment. So very nice to see you, Rushabh, yesterday. And thank you so much for coming. Nice. And thank you. Thanks to you all. Okay, so on every Monday we try to come together. It's a community platform and it's throughout the year. So though we complete our batch also, you can be a part of this club. And the sole purpose is people should come and interact. Though you complete your classes or trainings, after that you should keep rolling the things. Why? Because at least once in a week you can come and interact with your new students or with friends or anybody, because it is environment, it is a skill, and if you keep polishing you would find it beneficial in your life. Okay, so it's open for all. Though you don't join classes also, you can be a part of this club. That's the beauty of this Global English Club, and we have been doing this since many years.
many people who cannot join classes because of their busy schedule, because of their other reasons, they come and they take part in such activity. Okay, so you also can be a part of this whenever you have time. Don't worry. So thank you so much, Rushabh. Okay, and did you reach safely? I forgot to ask later on. Yes, Rushabh, did you reach safely? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, Yeah, yeah. it Elaborate, was not please. raining. It was It not was not raining, raining on the. fortunately. Yes, yes. So that's So why I no, not to reached. worry. Yes, yes. You reached on time. That's good. Okay. So anybody else? Ashwini was also there, I guess, right? Ashwini, how was your club experience? You tell me. Club is a very good. Mm, कमन कमन ये एक्टिविटी इसीलिए ले रहा हूं मैं कि लाइव बात करना है आपको, जो भी गलत होगा आई विल हेल्प यू। और यही है हमारा एम है क्लास का कि ज्यादा से ज्यादा आपसे इंग्लिश बोला हुआ जाए, ताकि आपको गलती होने के बाद मैं करेक्ट कर सकूं और वो टॉपिक्स भी जो हमने सीखे वो अप्लाई होंगे। चलो। English class or English class is very important for life. Interview, communication skills, and mm, chatting for English is very important. Anything else? Gandhi sir is very good teaching. ओके, गांधी सर इज टीचिंग वेरी गुड, ऐसे बोलो। Gandhi sir is teaching very good. कंटिन्यूस टेंस में बोल रहे हो आप ये, राइट? गांधी सर इज, ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मेट, फिर टीचिंग है वो अब हो गया वहां पे। ओके, थैंक यू सो मच। I'm improving actually because of my students. Because when I come to know new students, when I meet them, I try to match their level. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे जाते हैं, सो अलग अलग स्टूडेंट्स मिलते हैं। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट टू अपॉर्चुनिटी टू interact with lawyers, doctors, engineers, and then working professionals, all the fields people, because it's a domain, or you can say, you said very well, English is integral part of the life. It is very important everywhere because it's a global language. So from last 15 years, I have been doing the work, but I didn't feel like it's a work. It's learning experience. Okay, so I can say it's practice for me. हर कोई नया अलग तरीके से सोचता है, अलग यूनिक मेंटेलिटी होती है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। सो आई गेट अपॉर्चुनिटी to master myself, and I'm trying it. Okay, that's the reason I can say I'm enjoying it. So you can also do the same. सीखना तो एक छोटा सा टाइमिंग होता है वो लाइफ में, बट उसे एनलार्ज करना, एनहांस करना, उसे डेवलप करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई विल नेवर से दैट यू लर्न इंग्लिश, यू एंजॉय इट। जो भी आते हैं उसे एंजॉय करो, गलती होने तो गलती को करेक्ट करो, आगे बढ़ो। दैट्स इट। लैंग्वेज में तो इतना ही काम है, बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक swimming in ocean. Okay, so we cannot measure the depth. It's like करते रहो, that's it। फिर आपको प्रेशर भी नहीं आएगा उस चीज का। ठीक है, सिर्फ बेसिक्स जो होते हैं ना वो आपको फंडामेंटल संभालने पड़ते हैं। अगर वहां पे गड़बड़ होगी तो फिर मीनिंग समझ में नहीं आता है ना, तो बेसिक्स के साथ हम जुड़े रहेंगे। इट्स दैट इजी। ओके, सो अश्विनी, दैट्स नाइस। एंड एनीथिंग एल्स अश्विनी, डू यू वांट टू ऐड? How was your day today? I guess you work also, you are working woman. So how was your day? Ashwini, I guess, are you audible or not? Can you speak? Yes, sir. हाँ, so why do you think? Don't think a lot. ये क्लास बोलने का है। ओके, सो शांत नहीं बैठ सकते आप, मैं बैठने ही नहीं दूंगा आपको। चलो, how was सर your आप day? क्या क्या पूछ रहे हैं सर आप?
मैं ये पूछ रहा हूँ आज का दिन कैसा था आपका, आज सुबह से क्या क्या किया आपने? I wake to 6 a.m. ओके, आई वोक अप, I woke up to 6 a.m. टू नहीं, Then आई वोक अप एट, I woke up at 6 a.m. Then I brushed teeth. Then bath. हाँ पूरा सेंटेंस में बताओ, ऐसे थोड़ी एक एक वर्ड में, देन बाथ, देन टी, देन कॉफी, देन लंच, देन ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा सेंटेंस में बताना है ताकि वहां पे वो फॉर्मेट जो हो रहा है ना दिमाग में वो सेट हो जाएगा, राइट? इसलिए एक्टिविटी ऐसा ले रहा हूँ। Then take bath. क्या होगा? वी टू वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा ना। I Takes bath. took, Took bath. I took bath. then Then I breakfast. अभी आपने ब्रेकफास्ट खाया या वर्ब खाया अभी? वर्ब आपने बीच में मिस कर दिया। ब्रेकफास्ट क्या किया आपने, बनाया या खाया? Then I cook to breakfast. टू नहीं आएगा। देन आई कुक्ड ब्रेकफास्ट और देन आई मेड ब्रेकफास्ट, देन आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। Then I go to for 8 a.m. company. नाही नाही, गो नाही आएगा, अभी पास्ट में चल रहा है सब। सकाळपासून काय काय केलं मी? सकाळी 6 वाजता उठले, मग मी आंघोळ केली, मग मी ब्रेकफास्ट केला, मग मी जॉबला रेडी झाले, मग मी जॉबला गेले. सगळे सिंपल पास्ट मध्ये ना, साध्या भूतकाळात वाक्य आहे की नाही सगळे वाक्य, मग एकच फॉर्मॅट मध्ये येईल. आय वोक अप अर्ली मॉर्निंग एट 6, देन आय गॉट रेडी, आय मेड ब्रेकफास्ट, आय एन्जॉयड ब्रेकफास्ट, आय वेंट फॉर माय जॉब. सिंपल वाक्य होते सगळीकडे. सिंपल मध्ये काय होतं, सिंपल पास्ट होतं, त्यामुळे V2 लागत होतं सगळीकडे. कळालंय का? Yes, sir. डोंट वरी, चुका झाल्याने प्रॉब्लेम येत नाही, न बोलल्याने प्रॉब्लेम येतो. कारण ही स्किल आहे, स्पोकन इंग्लिश आहे ना, स्पोकन म्हणजे बोललं गेलं पाहिजे. कळालंय का? त्यामुळे पद्धतीनेच करा त्या. थांबण्यात काहीच पॉईंट नाही. जो विचार करत बसेल ना तो कधीच बरोबर नाही येणार. हे लक्षात घ्या, माझ्या एवढ्या वर्षाच्या अनुभवावरून सांगतोय. इफ यू वेट फॉर परफेक्शन, परफेक्शन विल नेवर रीच टू यू. यू हॅव टू स्टार्ट द जर्नी, देन यू वुड रीच टुवर्ड्स परफेक्शन. ओके, Okay, sir. दॅट्स नाईस. आता जे जे टेन्स रिवाइज करायची गरज आहे ती करा, मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय. डोंट वरी. चलो, एनीबडी एल्स? मधुरा कुलकर्णी, हाउ वाज युअर डे? Today, my day was very hectic due to some client issues. Our software not working properly. Was not or is not? Was not. Was not working properly. So what happened exactly? Can you please narrate the situation in detail? We are facing we were facing very issues that Many issues. many issues. That's why our daily schedule, daily working time also Extended. extended. So, and I am also so exhausted. Okay, I'm feeling exhausted. Okay, exhausted म्हणजे लक्षात आलं ना शब्द? खूप थकलेली. म्हणजे टायर्ड हा ठीक आहे, टायर्डच्या पुढे एक्झॉस्टेड असतो. ठीक आहे, बेसिक वर्ड टायर्ड आहे. आय एम फिलिंग टायर्ड. ओके, आय एम फिलिंग, यू कॅन से लो, यू कॅन लो इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी. बट आय एम एक्झॉस्टेड म्हणजे संपलंय, आता काही इच्छाच नाही, पण आता तुमच्यामुळे क्लास अटेंड करते सर. एम आय राईट? असं असं फिलिंग आहे, म्हणजे असं की मी खूपच थकले, आता खूप दिवस आता खराब गेला, हेक्टिक होता. बट इट्स माय ड्युटी अँड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आय एम अटेंडिंग इट. Because I could see your face today, you are really feeling tired, I guess.
every day it is very charming, but as tiredness I can see. No problem. It's okay. It was experience. Client is always there to teach us. You can say that because no client is satisfied because they are expecting better, and that's why we can become perfect. So when there are expectations, then it builds positive pressure if we take it positively. If we see negatively, then it will not build positive pressure at all. It will, you can say, make burden. So it is our duty to take it positive. If somebody is pointing out our mistakes and expecting better, so it means we are lucky that other person is investing their time or energy on us to make better. Okay, that is the philosophy. कोई आपकी गलती निकाल रहा है ना, समझ लो वो आपको बेहतर बना रहा है उसकी एनर्जी लगा के। तो इजंट इट गुड? ये तो बेहतर होना चाहिए ना। कोई और हमें बेहतर बनाने के लिए उसकी ताकत लगा रहा है और ऊपर से पैसे भी दे रहा है। आपके आपके केस में तो क्लाइंट पैसे तो दे ही रहा है ना, जॉब तो दे ही रहा है पैसे हमें। देता है लेकिन सर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो भी उसको काम चाहिए ना ऐसे। हाँ तो फिर अभी नहीं चल रहा है तो वो ऐसे थोड़ी बोल रहे पैसे नहीं दूंगा, पैसे भी दे रहे हैं, अभी एक्सपेक्ट तो करेगा ही ना। यस और नो? तो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चल रहा है? वो डिजास्टर मैनेजमेंट बैकअप आपके पास चाहिए, वो एक्सपेक्ट करेगा ही, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कमिटमेंट। यस और नो? सो यस सर। आपको अभी वो बेहतर बना रहा है कि अगले क्लाइंट को ये प्रॉब्लम ना आए ना, इसलिए वो आपको सिखा रहा है। ऐसे साइकोलॉजी रखना चाहिए। दैट इज ओनली इन आवर हैंड। हम तो कुछ नहीं बोल सकते उसे, बिकॉज कस्टमर इज किंग एक्चुअली। So यस। don't take it negatively. थोड़ा बहुत hammering होता है. I know that. I also experienced that pressure because I worked many years in different industries. Even nowadays also, like students also. आप लोग अगर मेरे एक्सपेक्टेशन से काम नहीं करते हो या फिर आपके एक्सपेक्टेशन से मैं नहीं कर पाता हूँ, so I feel okay, I'm helpless. I should do something because sometimes I'm depending on internet. Sometimes I'm not able to talk with you, so I feel helpless. But I find solutions. I keep alternative network. I feel find different ways. Okay, तो ये होना होता ही है. Don't worry, enjoy it. ठीक है? यस। That's nice. Good. So I guess your job time is over, right? यस यस नाउ So ओवर। now over. So don't worry, just sigh relief and wait for the next day. Okay, ओके। that's nice. Everything gets over if we keep it इन टाइम। अगर आप उसको दिन भर कैरी करोगे ना इसके आगे भी, तो कल के दिन भी शुरुआत भी ऐसी होगी। सो चैप्टर इज क्लोज नाउ, लेट्स सी टुमारो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जॉब। You know what is the difference between job and you can say business? I will tell you shortly. क्योंकि काफी लोग आप में से जॉब करते हो, राइट? बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको ऐसा लगता है आई विश आई वुड हैव बिजनेस, आई विश आई वुड हैव डन माय ओन। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, पर वहां पे ही धोखा होता है, क्योंकि अभी जो है ना वो आप लूज कर रहे हैं वो हैप्पीनेस। बिजनेस का छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा जॉब और बिजनेस का। इट्स माय ओन थिंकिंग। Fortunately, I have done job also for many years, and I have been doing business as a professional. So, or even some other businesses also I run. So I have some experience. I can tell you, job gives you short-term security, not long-term. Okay, but business gives you long-term security, not short-term. ये समझ में आया डिफरेंस? अभी इसके और एक डेफिनेशन क्या है कि business is 24 hours of job and job is only 8 to 10 hours of job. अब यहां से आपको समझ में आना चाहिए, 24 आवर्स का जॉब होता है बिजनेस। आपको लगता है वो छुट्टी पे, बट सीपीयू बंद नहीं होता है, वो 24/7 बैकअप में रहता है। क्योंकि आगे काम क्या करना है, एम्प्लॉयज को क्या काम देना है, टीम को क्या काम देना है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, नए क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं, ये आपका लोड नहीं होता है, वो मैनेजमेंट का लोड होता है। उनको वो चलाना है, मीन्स दे आर फार अहेड देन यू। आपको क्या काम देना है ये उनका जिम्मेदारी है। तो वो 10 स्टेप आगे चाहिए, तभी आप किससे डील कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलोगे हमारा थोड़ी काम है, हमें बताए उतना हम करेंगे, और 8 घंटे हो गए तो आप घर पे चले गए, उधर कंपनी में आग भी लग दो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाला है, आपका तो सैलरी ड्यू है, वो तो मिलना ही मिलना है आपको। यस और नो? तो बिजनेस का ना अलग होरिजन होता है, और वो जिसका नेचर है ना उसे नहीं करना चाहिए। आइडियली जॉब is also not bad,
बिजनेस इज ऑल्सो नॉट बैड, कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो नेचर क्या कहता है आपका, उस हिसाब से फॉलो करो, तब आप एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो क्या हो जाता है ना, अभी जॉब में है, तब भी खुश नहीं, क्योंकि बिजनेस नहीं कर पा रहे। और जब बिजनेस में जाओगे तब ऐसा लगेगा अरे यार सब में ही करना है मुझे। शुरुआत में तो ऐसे, आई एम रियली सॉरी, एज आई मेंशन्ड यू सी, there was technical error, so I had backup, but it took time to shift on it. समझ में आ रहा है? But still I am facing with happiness. Did you see any change? आप 2 मिनट का गैप हो गया, आई गेस, राइट? पर आपने ऐसा कुछ स्ट्रेस चेंज फील किया, अभी मैं क्या करूं, ओह माय गॉड नेटवर्क ही नहीं है, ऐसा हुआ क्या? नो, बिकॉज आई नो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। सो इन आवर हैंड द सिचुएशन इज दिस ओनली, कि हम जो है उसे एक्सेप्ट करें, उसे बेहतर होने के लिए कोशिश करें। चेंज नहीं करेंगे, हम बेहतर होने के लिए कोशिश करेंगे, बट दैट इज इन आवर हैंड ओनली। समझ में आ रहा है? सो यू गाइज आर वेरी लकी दैट यू आर डूइंग जॉब। इन फ्यूचर यू मे डू बिजनेस ऑल्सो, बट हैप्पीनेस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आज आपके पास पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज 8 घंटे के बाद आपको कोई पूछने नहीं आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हो जॉब में, तो उनको रिस्पेक्ट भी वैसे ही मिलता है। जो 8 घंटे की जॉब करते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है जितना सैलरी में है। बट जब 8 घंटे से आगे जाते, 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा डिवोट करते कंपनी को, तो मैनेजमेंट भी उसका ध्यान रखती है, और उसे नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन मिलता है, नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ऑलवेज थिंक दैट वे। तो एक थॉट बताता हूँ, अभी लकीली सॉफ्ट स्किल की बात निकली है, सो इट इज माय ड्यूटी। इंग्लिश सबसे आसान है, इंग्लिश का टेंशन मत लो, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अक्वेंटेड विद दिस। बट लाइफ फिलोसॉफी भी समझाना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट दैट ग्रेट, आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, बट मैंने जो किया है लाइफ में वो थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरे एक अच्छे दोस्त है, इज वेरी जेन्युइन, वेरी जेंटलमैन। आई हैव बीन इन हिज कॉन्टेक्ट सिंस 2013। I find it very happy when I remember him and his thoughts. So, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब मैं जॉब भी कर रहा था, I did dual work, job as well as classes. Okay, तो मैंने काफी साल ऐसे मेंटेन रखा, क्योंकि I knew business is not that easy, क्योंकि मेरे साथ एक तो शादी भी हुई मेरे 2011 में ही, उसके बाद मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो काफी सारी चेंजेस होते हैं पर्सनल लाइफ में। सो आई टैकल्ड इट माई वे। ओके, तो मैंने ये सोचा, उन्होंने एक बात मुझे सिखाई कि काम इतना करो ना जॉब में कि सैलरी छोटी लगनी चाहिए। समझ में आ रहा है? काम इतना करो कि सैलरी छोटी लगनी चाहिए। आप उल्टा करते हो अक्सर, आप इन द सेंस 90% लोग, सैलरी भले कितनी भी हो, आप क्या है यार इतनी से सैलरी में इतना काम करेंगे क्या, छोड़ दे मेरा काम नहीं है। ये सोच है ना, वो आदमी को हमेशा जॉब के लिए ही प्रेरित करती है। वो जॉब ही करेगा लाइफ टाइम, भले यहाँ से लेके आगे जाएगा, पर जॉब ही करेगा। वो मेंटेलिटी मेरे तब मुझे सिखाई उन्होंने, और उसकी वजह से नाउ आई एम इनटू फुल टाइम बिजनेस सिंस मेनी इयर्स। बट आई डू इट बेटर देन जॉब। जॉब में भी मैं कोशिश ही कर रहा था, बट आज भी उससे बेहतर करता हूँ। तो ये मेरा जॉब ही है, दिस इज नॉट माई बिजनेस एक्चुअली। वो कहने के लिए बिजनेस है, इट्स माई जॉब, बिकॉज 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर दिस। अंडरस्टूड? तो ये आप सोचो, और लाइफ में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। तो कोई टाइम परमानेंट नहीं होता है। आई हैव स्टार्टेड माई वर्क व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो फर्स्ट जॉब मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज इन 11th, बिकॉज आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड माय पेरेंट्स डिडंट टेल मी टू डू एनीथिंग, बट आई फोरकास्टेड। वैसे भी स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके मैं इतना तो पढ़ाई कर नहीं पाया था। मुझे समझ में आ गया 11th से कि वैसे भी टाइम जाने वाला है, वैसे भी जाने वाला है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर माय ओन हैप्पीनेस। पैसे तो बाद में देखेंगे। एंड फॉर्चुनेटली आई चोज द सेगमेंट। माय मदर टोल्ड मी यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। पहले तो मराठी हिंदी मारवाड़ी में ही बात करता था मैं, इंग्लिश का तो कोई नामो निशान नहीं था। बट उन्होंने मुझे एक बात रियलाइज की कि आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो, तो वो स्ट्राइक हुआ माइंड में। तो मैंने बोलने का ही प्रोफेशन चूज किया। आई स्टार्टेड इन मार्केटिंग सेगमेंट। पहले तो वही काम था, मार्केटिंग में बहुत आसानी से जॉब मिल जाता है। तब भी ऐसा था, 2003 की बात है ये, इट्स बिफोर 23 years almost. I started working in marketing division in Lok Satta newspaper. There I started gaining experience. कोल्ड कॉलिंग था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम था, काफी सारा फेल्योर आया, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट। उसके बाद 12th में आ गया, देन आई स्टार्टेड विद टेलीकॉम इंडस्ट्री।
देन वहां पे थोड़ा क्लास चेंज हो गया, देन फर्स्ट ईयर आई डिसाइडेड टू गो पुणे। पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं था, घर वालों ने भी रोका नहीं, वो बोले कि तू कर रहा है ना कुछ तो जाओ। एंड आई केम ऑन माई 56%, 12th में 56% आई गॉट, बट एवरीथिंग इज माइन, कि मैंने पढ़ाई करके वो निकाले। ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी की है किया, काफी लोग कदम भी करते थे। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विथ माई ओन एफर्ट्स। तो वो 56 भी मेरे लिए 96 के जैसे है, ठीक है, बिकॉज मेरे खुद के हैं। एंड ऑन दैट बेसिस आई गॉट एडमिशन इन गुड कॉलेज, ओके, एंड देन आई डिसाइडेड टू वर्क एज वेल। फिर मैंने इंडस्ट्री चेंज किया, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में टिल मास्टर डिग्री आई वर्कड इन पुणे, ओके। तो आई डिड एक्सटर्नल कॉलेज आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कॉलेज में वैसे भी जाके टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे ज्यादा फुल टाइम अलग लेवल पे जॉब करेंगे। सो आई डिड फुल टाइम जॉब 8 to 10 hours का, एंड देन आई चोज डिफरेंट सेक्टर्स, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, centers, real estate, placement agency, everything which I could do that time. And it was very versatile experience for me. And with those all things, I became professor. To mark my words, मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया फुल टाइम, खुद क्लासेस नहीं लगाए कभी, और फिर भी मैं आफ्टर माय मास्टर्स आई बिकेम प्रोफेसर रेनाउंड कॉलेज में, वो भी सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ कॉमर्स लोनावला। एंड आई क्रैक्ड नेट सेट एग्जामिनेशन फॉर द सेम। तो ये पढ़ाई से नहीं हुआ सिर्फ, पढ़ाई तो इट्स ओके, वो तो मैंने जितना मेरी कैपेसिटी उतना ही किया, बट आई कुड नेल इट बिकॉज आई डिड इट। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लिया 5-6 सालों में, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई पॉलिश्ड माय इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, एंड दैट वाज द रिक्वायरमेंट, एंड स्ट्रांगली आई फेल्ट इट। जब मैंने लोनावला कैंपस में मुझे जॉब मिला, तो एक ही बात पे मिला, आई वाज क्वाइट गुड इंग्लिश कम्युनिकेटर बाय दैट टाइम, एंड दे वांटेड द सेम स्किल। अदरवाइज मेरे से एक्सपीरियंस बंदे थे जो 5-5, 10-10 साल एक्सपीरियंस था, पीएचडी था उनका, बट मेरा तो सिर्फ एमकॉम था, मास्टर्स बीच में मैंने कॉमर्स किया था उसके तब, एंड नेट सेट दैट वाज एलिजिबिलिटी, बट इवन सिलेक्टर्स डिडंट बॉदर अबाउट इट। 35 में से मैं एक ही था जो उनके लेवल पे उनको लग रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है एंड कॉन्फिडेंस अच्छा है, एंड आई गॉट द ब्रेक। From 10,000 rupees salary, I promoted to 40,000 per month. But in 1 year, I came to know this work I cannot do throughout the life because वो मेरे लिए सिक्योरिटी था, but I did not want that security because मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस भी काफी थे। वही पढ़ाओ, वही बोलना है आपको जो सिलेबस में है, ज्यादा नहीं आप बाकी बोल सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आने लगे। 1 साल में मैंने किया, एंड आई फाउंड आउट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी मॉरली एंड ओवरऑल, जो मुझे लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थे वो नहीं होगा। सैलरी डजंट मैटर। Then I dropped that. I came back to Pavilion, which is my hometown, and I forecasted that by that time कि इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट है, मैं कर सकता हूँ। ट्रेडिशनल एजुकेशन मेरे पास कुछ नहीं था इंग्लिश का। Later on, I did MA English as well. Then I did PhD also. Many things I did, but along with my job experience and along with my classes. तो कहने का मतलब है मैंने पहले 5-7 साल इन्वेस्ट किया था, तब जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला, आई कुड बिकम सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। तो कहने का मतलब है कि एक दिन में नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिकल थॉट है। तो वो आपको भी मौका मिला है, आप लोग वो देख नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, चाहे वह सिर्फ जॉब ही तो कर रहे हो। अरे यू आर इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। वो 8 घंटे का जॉब तो करो ही करो, साथ में फोरकास्ट करो आगे आप क्या कर सकते हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो जैसे आप अभी कर रहे हो, बट उस लेवल पे नहीं आ रहे हो। अभी आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, बट उस लेवल पे आके नहीं कर रहे हो ना, राइट, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, श्योरली यू वुड ओपन न्यू डोर्स ऑफ योर करियर, बट वो करना आपको ही है। मैंने किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। मैं ऐसा ट्रेनर नहीं हूँ या ऐसा कोच नहीं हूँ कि आपको बोलो हाँ हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। आई विल हेल्प यू, आई विल डायरेक्ट यू, बट यू हैव टू वॉक अप ऑन द ट्रेल। समझ में आ रहा है? कर चलना तो आप ही को है ना, मैं थोड़ी क्या करूंगा आपसे। तो इतना प्रैक्टिकली मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, और वो आज भी आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि इट्स रियलिटी, एंड आई डोंट वांट यू टू स्टे इन लाइक हाँ हो जाएगा, अभी क्लास तो ज्वाइन कर लिया है, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू इट, ओनली यू आर गोइंग टू डू इट। ऋषभ करेगा तो मधुरा को बेनिफिट नहीं होने वाला, पूरा सुनने के बाद
बेनिफिट होता है लैंग्वेज के लिए, बट फिर भी बोल के देखना है आपको, अप्लाई करना है आपको। ओके, इट इज वेरी सिंपल बिकॉज स्टूडेंट लाइक मी, अ पर्सन लाइक मी हु स्कोर्ड 35 मार्क्स इन 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम इन इंग्लिश, तो मैं कर सकता हूँ इस लेवल पे आके। मैं खुद तो कर ही रहा हूँ, बट आई एम एबल टू डू व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ। मैं जो कर रहा हूँ वो आपको मिल रहा है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ उस लेवल पे। तो आपको तो किसी को सिखाना तो है ही नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए हो सकता है। तो आपको करना ही है जब मैं बोलता हूँ उस तरीके से, बस ज्यादा कुछ मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो करना ही है, वो नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस में क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आई डिड इट फ्रॉम मेनी ईयर्स, ओके, एंड आई हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। बट उन्हीं को मिला है सक्सेस, उन्हीं को रिजल्ट मिला है जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने अप्लाई किया है। आप सिर्फ सुनोगे, अप्लाई नहीं करोगे, सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्लियर? सो ऑनलाइन रहो या ऑफलाइन रहो, आई गेट मच बेटर रिजल्ट्स, बिकॉज ऑनलाइन में भी मैं वही पढ़ाता हूँ जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। एंड वी हैव आई विटनेस, आई गेस अश्विनी कम्स फॉर ऑफलाइन ऑल्सो। अश्विनी, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ फर्क है आपको? वैसे ही बात करते ना जैसे यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं या हाँ? क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया मुझे। अश्विनी, आप ऑफलाइन नहीं। क्लास में भी आते हो ना? यस सर। हाँ, तो आपको कुछ चेंज लग रहा है ज्यादा? नहीं सर, हाँ, सेम इस ही है। बात के लिए हाँ से ये बोलो ना, फिर ऐसे मैंने थोड़ा सा लगा ऐसे कैसे बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो सेम क्यों है, बिकॉज ऑफलाइन में भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ और ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी से सिखाता हूँ। तो ऑनलाइन में आपको कन्वीनियंस है, यू आर सेविंग योर एनर्जी, यू आर सेविंग योर टाइम, दैट्स इट। पर वो एनर्जी लगाओ ना फिर। आपको क्लास में आना नहीं है 10 15 20 किलोमीटर, आपको टाइम नहीं ज्यादा देना है, तो वो 1 घंटा जो आपका एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते पर आप। ये होना चाहिए विजन। या 1 घंटा क्लास आप करोगे ऑनलाइन, उसके बाद इमीडिएट 1 घंटा आप क्या करो, उसी को रिवाइज करो, प्रैक्टिस जो बोले वो करो। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ऑफलाइन स्टूडेंट को क्या होता है, घर से निकलो, आधा घंटा 15 मिनट जल्दी निकलो, फिर ट्रैफिक से आओ, फिर यहाँ पे रुको, फिर वापस जाओ, तो 2 घंटे तो वो इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, जो आप सीख रहे हो उसके लिए। अब आप स्मार्ट हो इसलिए आप ऑनलाइन कर रहे हो, पर वो स्मार्टनेस कब डिलीवर होगा, जब आप 1 घंटा बाद में रिवाइज करोगे या फिर 1 घंटा आधा घंटा पहले उसको प्रैक्टिस करोगे। तब डाउट्स जनरेट हो गए, तब अप्लाई होगा, तब आपको बोलने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप बोलो, टॉक टू ऑन दिस टॉपिक, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही एक्सप्लोर करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये प्लीज ये करिए आप। ऑनलाइन में वही बच्चे करते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, एंड यू आर। ऑनलाइन सबको नहीं पॉसिबल होता है। ऑनलाइन मैंने बहुत साल काम किया है, बट ऑनलाइन में हर एक को रिजल्ट नहीं मिलता है जब तक वो खुद होके अनम्यूट नहीं करेगा, खुद होके कैमरा ऑन नहीं रखेगा, उनको रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरे क्लास में कंपलसरी कैमरा ऑन रहता है, क्योंकि आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए, ठीक है? एंड एनी टाइम यू कैन अनम्यूट, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते, डाउट नहीं पूछ सकते, सब कुछ पॉसिबल है जैसे ऑफलाइन में है। तो इतना पॉसिबिलिटी, प्लस वन मोर पॉइंट, यू वुड गेट रिकॉर्डेड एक्सेस ऑल्सो। ऑफलाइन में कोई बच्चा 2 दिन नहीं आते तो उसको पता नहीं चलता क्या हुआ था क्लास में, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आपके पास बैक, इसके पहले के जो सेशन है उसके भी सेशंस का रिकॉर्ड है आपके पास, अभी का भी है। जैसे अभी बालाजी ने आज ज्वाइन किया है, सो ही मिस्ड अर्लियर सेशंस, राइट? बट ही वुड नॉट मिस इट इफ ही एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस, आपको ऐप में दिया हुआ है। तो ये बेनिफिट आपके लिए है, एंड नाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक। 2 लोगों का आवाज है, बाकी लोगों को क्या हुआ? Yes, sir. दैट डिटरमाइंस द सक्सेस रेशियो। तो क्लास में टीचर सबको सेम ही पढ़ाते हैं, आता एक ही टॉप में है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, खत्म। उसके बाद नहीं आते, कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो क्यों नहीं सब टॉप में आते? बिकॉज सब लोग उतने अलर्ट है ही नहीं। टीचिंग तो सब सेम है सबके लिए, अलर्टनेस सबका सेम नहीं होता है। ओके, एंड दैट आई वांट यू टू डू। सो विश ऑल द बेस्ट। चलो, आज के सेशन में सॉफ्ट स्किल और इतना ही टॉपिक होगा। कल हम टॉपिक लेंगे जिसमें टेक्निकल टॉपिक होगा वापस, ठीक है? तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि आई वांट यू टू ब्रश अप वॉट एवर यू हैव डन बिफोर। वो ज्यादा ब्रश अप होगा तो अनम्यूट करने के लिए टाइम नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड सी यू टुमारो विथ न्यू एक्टिविटी। आज का होमवर्क आपको ऐसा रहेगा कि टॉपिक आपको देता हूं मैं एक,
a lesson I learned hard way in my life. ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में थी जहाँ पे आपने डिफिकल्टीज फेस किया, चैलेंज फेस किया और उसमें से सीखा है आपने कुछ, दैट यू आर गोइंग टू नरेट. तो कोई भी लाइफ की ऐसी सिचुएशन जो आपको चैलेंजिंग लगी बट आपने उसे फेस किया और आपने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया. जैसे कोई वीकनेस होता है ना आपका, उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है ना. तो वो एक्सपीरियंस से होता है, वो सीखने से होता है, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से होता है. तो कोई भी ऐसा लाइफ का सिचुएशन जो आपने सीखा है, आई द लेसन आई लर्न हार्ड वे. समझ में आ रहा है? ये आपका टॉपिक रहेगा, इस पे आपको लिखना है एंड देन यू डिलीवर इट टुमारो. गॉट इट? चलो. यस. और जो भी, Okay. हाँ, टॉपिक इज अ लेसन आई लर्न हार्ड वे. कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने सीखा है या, तो वो नरेट करना है आपको. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूंगा, फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट पुणे, आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड fortunately or unfortunately, both of you I can say, I had been invited to speak in front of people. I was, you can say, very low confidence I had, and I couldn't deliver few lines also. Then I learned from that situation. I just think I can do, but I couldn't do it. So what is the gap? What is the missing factor? I did not practice before. I thought it in my mind, I would do it, but I couldn't deliver when the time came. So I learned the lesson I should practice beforehand, and then only I could perform. So after 1 month of proper practice and you can say mirroring practice, I used to speak on mirror, in front of mirror. I couldn't record that time because I did not have that facility which you have right now. So you can deliver your speech, you can deliver your thought, you can use reprographic technique, which I already mentioned. आज अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, but reprographic technique means you can imagine your performance level. Just close your eyes and talk to yourself what you are going to deliver. So it would build a system here and you would imagine it. So once you have forecasted, it will be good to deliver, easy to deliver. And that I did for 1 month, and then I went purposefully with confidence and I rocked it. अंडरस्टूड? तो ये मुझे तब लेसन मिला ना कि मैंने सोचा था मैं कर सकूं बट नहीं कर पाया. इट्स ओके, दैट वाज अ लेसन फॉर मी. दैट वाज नॉट द मोमेंट टू बिकम अपसेट. अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं. बहुत आसान है ये कहना. कब कहेंगे आप ये 10 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं आते तो आप कहो आई एम डम. अब एक ही बार कोशिश करते हो और बोलते हो, लेवल लगा देते हो, मुझे तो आता ही नहीं. कैसे होगा ऐसा? डोंट डू इनजस्टिस विथ योरसेल्फ. 10 बार कोशिश करो, फिर डिसाइड करोगे तो फिर हम सोचेंगे उस पर. फिर भी मौका है, 10 के बाद 100 बार प्रैक्टिस कर सकते, इतना ही होगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. गॉट इट? तो ये तो बहुत आसान काम हम कर रहे हैं. ये तो सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने किया है ऑलरेडी. तो आप कोई रॉकेट साइंस नहीं सीख रहे हो. इंग्लिश इज सच ए पॉपुलर लैंग्वेज, crores ऑफ पीपल स्पीक. एम आई राइट? तो आप तो इससे भी डिफिकल्ट काम कर चुके हो, स्पेशली दोज हु आर मैरिड. जैसे ऋषभ का पता है मुझे, जब शादी कर लिए तो इससे डिफिकल्ट काम क्या आएगा. तो वो कर सकते हैं ना, तो ये तो बहुत आसान है. ठीक है. तो कोई टेंशन मत लो. बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल टुमारो. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. Thank you, sir. Thank you all of you. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.